પહેલી વખત જોયું છે એટલે જે કર્યું એના બદલ થેન્ક યુ. પણ ખાલી બીજી 30 more મિનિટ, ખાલી 30 મિનિટ માટે હજી શાંતિ જાળવો, જેથી કરીને આપણો આખો કાર્યક્રમ સફળતાપૂર્વક આગળ જાય. અને બીજી એક અનાઉન્સમેન્ટ એ હતું કે જ્યારે પાણીની બોટલ તમે યુઝ કરો ને તો મેક શ્યોર કે તમે આખી બોટલ યુઝ કરો. એક ઘૂંટો પીને પછી મેલી ના દેતા. એટલે પાણીની બોટલ આખી યુઝ કરજો, બરાબર? આ બે વસ્તુ મેં ખાલી ધ્યાન રાખજો. પ્રણામ. તો થોડા વોલેન્ટિયર આગળ આવી જાય અને જે બધાને આપણે પ્રશ્નો લખવા માટે ચિઠ્ઠીઓ આપી હતી એ બધા અહીંયા લઈને આવે તો આપણે પ્રશ્નોને એક પછી એક પૂછીશું. એક નાનકડી સ્ટોરી હું તમારી વચ્ચે શેર કરવા માંગુ છું કે તમને ખબર હશે કે આખા અમેરિકામાં ભારતની સંસ્કૃતિ અને ભારતના વેદોની ગુંજાયમાન કરી હતી એક શખ્સે. એનું નામ છે સ્વામી વિવેકાનંદ, જેમનું બાળપણનું નામ હતું નરેન્દ્રનાથ. તો નરેન્દ્રનાથને બહુ જ પ્રશ્ન થતા હતા. તો એમના મિત્રોએ એમને કીધું કે તમે રામકૃષ્ણ પરમહંસ જોડે જાઓ. તો સ્વામી વિવેકાનંદજી રામકૃષ્ણ પરમહંસ જોડે જાય છે અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ એ વખતે ધ્યાનમાં બેઠેલા હોય છે. તો હવે જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજી રામકૃષ્ણ પરમહંસને પ્રણામ કરે છે ત્યારે રામકૃષ્ણ પરમહંસ એમની આંખો ખોલે છે. અને જ્યારે તે આંખો ખોલે છે ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજી એમને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે આંખો બંધ કરી છે તો કશું દેખાય છે કે બસ ખાલી એમ જ બંધ કરી છે? સીધો એકદમ નિશ્ચલતાપૂર્વક પ્રશ્ન પૂછે છે. એમની ક્યુરિયોસિટી હોય છે, એમની અંદર જિજ્ઞાસા હોય છે પરમાત્માને જાણવાની. કહે છે કે તમને આંખો બંધ કરો છો ત્યારે કશું દેખાય છે કે બસ ખાલી બંધ કરીને બેઠા રહો છો? તો રામકૃષ્ણ પરમહંસ સ્વામી વિવેકાનંદની સામે જોઈ રહે છે અને એનો જવાબ આપતા કહે છે કે નરેન્દ્ર, જેટલી સ્પષ્ટતાથી, જેટલી ક્લિયરિટીથી હું તને જોઈ શકું છું, તારી જોડે ટોક કરી શકું છું, એટલી જ સ્પષ્ટતાથી હું ઈશ્વરને પણ જોઈ શકું છું અને ઈશ્વર જોડે વાત પણ કરી શકું છું. આ જવાબ સાંભળી અને સ્વામી વિવેકાનંદ દંગ રહી જાય છે અને પછી આગળ જતા તેમને ગુરુ બનાવે છે. તો જેવી રીતના સ્વામી વિવેકાનંદજીને એમના આગળના શરૂઆતનો જે દોર હોય છે એમાં ક્યુરિયોસિટી હોય છે, એમ તમને પણ ક્યુરિયોસિટી હોય, જિજ્ઞાસા હોય તો નિસંકોચ થઈને પ્રશ્ન પૂછજો. ડોક્ટર પ્રવીણજી રાજ સમાજની કૃપાથી, સદગુરુના આશીર્વાદથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો પૂરો પ્રયાસ કરશે. પછી આ પ્રશ્નોત્તરી પછી આપણે બધાને ફ્રી બુક આપીએ છીએ. એમાં એક તમસ્કે પાર, બૌદ્ધ મંજરી એન્ડ મંદિર યા ગુરુકુળ. તો પર ફેમિલી દીઠ અમે એક સેટ આપવાના છીએ, તો તમે લીધા વગર જતા નહીં કોઈ. તો હવે બધા ચિઠ્ઠીઓ લાવે અને આપણે એક પછી એક પ્રશ્ન પૂછીશું. ओके, तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा है किसी ने कि श्री प्राणनाथ जी कौन है? पहला प्रश्न है कि प्राणनाथ जी कौन है. जैसा मैंने कहा कि जब मेहराज जी के अंदर उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उपनिषद का एक वाक्य है ब्रह्मविदो ब्रह्मेव भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान बन जाता है. तो उन्हें जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जो क्षर और अक्षर से परे, जिसे गीता ने कहा कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि. क्षर जो है वो संसार का जो समस्त नश्वर संसार है उसे क्षर पुरुष कहा गया. कूटस्थ अक्षर उच्यते, और उससे परे अक्षर है परम पुरुषस्य तु अन्यः, उससे भी परे परम पुरुष है. तो वो जो परम पुरुष जिसे तारतम वाणी की भाषा में राज कहा गया, जिसे तारतम वाणी की भाषा में युगल स्वरूप राज श्यामा जी कहा गया, प्राणनाथ कहा गया, वो जब मेराज के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो सभी उनके साथ के जो
लोग हैं, जो सुंदर साथ हैं, वो उनके अंदर उसी आत्मिक स्वरूप का दर्शन करते हैं और उन्हें प्राणनाथ के नाम से संबोधित करते हैं। प्राणनाथ का मतलब है जो हम सबकी आत्माओं का, जो प्राणों का नाथ है। जैसे संसार में संबंध होता है, तो जिसका हमारी आत्मा के साथ शाश्वत संबंध है, जो हमारी आत्मा का प्रियतम है, वो प्राणनाथ है। और जब वो प्राणनाथ उसकी एक झलक मेराज के अंदर उतरी, तो उनके साथ में जो सुंदर साथ थे, उन्हें उस दिन से प्राणनाथ कह करके पुकारना शुरू किया। प्राणनाथ उनके शरीर का नाम नहीं था, जो उनके भीतर परम तत्व जो उतरा था, उसे प्राणनाथ कह करके संबोधित किया गया। दूसरा प्रश्न है, गीता में कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, यानी कि ईश्वर सभी के दिल में है। अगर ऐसा है तो जो पाप करता है उसके दिल में भी ईश्वर है, और जहां पर पाप होता है वहां पर भी ईश्वर होता है। तो क्या ये ईश्वर करता है? हम सबके भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, आत्मा निर्मल है। सांख्य दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है जिसमें कहा गया है सप्तक मणि वा। सप्तक मणि, जैसे आपने एक मणि को देखा होगा, एक आपने हीरे को देखा होगा, उसका क्या रंग है? उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन यदि उस सप्तक मणि को आप लाल गुड़हल के फूल के पास रखेंगे तो वो कैसी दिखेगी? लाल रंग की। यदि उसे सफेद गुलाब के पास रखेंगे तो वो कैसी दिखेगी? सफेद। और यदि उसे काले रंग के फूल के पास रखेंगे तो वो कैसी दिखेगी? काले रंग की दिखेगी। मणि तो एक है और उसका कोई रंग नहीं, उसमें कोई विकार नहीं, लेकिन जिस जिस रंग के फूल के संपर्क में वो आती है, वैसी वैसी वो प्रतिभासित होने लगती है। हम सब के भीतर वही एक चेतन है जो निर्मल है, जो उस मणि की तरह निर्विकार है। लेकिन हम सब का जो मन है, जो अंतस्करण है, वो सबका अलग अलग है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका अंतस्करण सफेद फूल की तरह है, तो वो जो निर्विकार मणि उसके संपर्क में आती है तो उसके जीवन से सत्य भासता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका अंतस्करण लाल फूल की तरह रजोगुण से युक्त है, तो उसके साथ जब उस चेतन निर्विकार आत्मा का संसर्ग होता है तो वो रजोगुण की भांति भासता है। वो व्यक्ति रजोगुणी होगा, संसार की कामनाएं करेगा, संसार का चिंतन करेगा। और यदि किसी का अंतस्करण मन जो है वो तमोगुण यानी काले फूल से ग्रसित है, तो उसके साथ वो निर्विकार आत्मा तमोगुण व्यक्ति की तरह भासती है। जैसे दुर्योधन है, शकुनी है, एक ही आत्मा है। वही आत्म अंश जो है योगेश्वर श्री कृष्ण में है, वही अर्जुन में है, वही धृतराष्ट्र में है, वही दुर्योधन में है और वही शकुनी में है। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत है, वो निर्मल चेतन भासता है। लेकिन शकुनी जो है, दुर्योधन है, वो काले रंग के तमोगुण के मन को और अंतस्करण को लिए हुए हैं, तो वही निर्विकार आत्मा उनके अंदर काले रंग की भासने लगती है। तो आत्मा सबकी एक है, निर्विकार है, उसमें कोई रंग नहीं। लेकिन हम सबके मन, हम सबके अंतस्करण और हम सबके संस्कार अलग अलग हैं, इसीलिए हम सबका व्यवहार अलग अलग है। कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, तो कोई तमोगुणी। कितनी योनियां हैं और इंसान मरने के बाद कौन सी योनि में जाता है, यह कैसे तय होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में 84 लाख योनियों का वर्णन आता है, और आज तो विज्ञान भी मानता है कि तकरीबन 80 से 90 लाख के आसपास संसार के अंदर जितने भी चेतन प्राणी हैं वो सब मिलाकर के इतने हैं। जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो क्या होता है? गीता में एक बात कही गई है जो बहुत सुंदर है कि जिस समय आप इस शरीर को छोड़ते हैं उस समय जो आपकी अवस्था होती है तो वैसा ही जीवन आपको प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर हमने पाप किया और अंतिम क्षण में जो है राम राम का जाप किया तो हम जो है मुक्ति को प्राप्त होंगे। जैसा जिसका संस्कार होता है वैसा ही जीवन लेने पर आप विवश होते हैं। यदि आपने रजोगुण के संस्कार एकत्रित किए तो आप ऐसे ही जीवन में जाओगे जहां रजोगुण की प्रधानता होगी। यदि आपने तमोगुण के संस्कार एकत्रित किए तो आपका अगला जीवन ऐसा ही होगा
क्योंकि जो विषय है, जो वासनाएं हैं, वो आपको खींच करके ले जाते हैं। जैसे कहीं पर यदि फूल खिला है तो जो फूल की महक है वो भंवरों को अपने आप खींच लाती है। उसी प्रकार जैसे हमारे मन की अवस्था होती है, जैसे हमने संस्कार बनाए हैं, वही संस्कार हमें आगे लेकर के जाते हैं अगले जन्म की यात्रा पर। इसीलिए कहा जाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू तमोगुण की अवस्थाओं को छोड़ और रजोगुण की अवस्था में आ, और रजोगुण की अवस्था को छोड़ करके सतोगुण की अवस्था में आ। और उसके बाद कहा त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना, कि तू तीनों से परे उठ करके उस त्रिगुणातीत अवस्था का संकल्प ले। तो ये हमारे पूरे जन्म के जो संस्कार है, जैसे हमने अपने चित्त पर संस्कार एकत्रित किए, वो निर्णायक बनते हैं कि इस जीवन को छोड़ने के बाद अगले जन्म में हमारी क्या गति होगी। सीड आया या ट्री आया, जीव और शिव एक या अलग, सुख और दुख कौन भोगे, जीव और शिव जो ने देखने की दृष्टि कहा था। जीव या शिव शिव या पहले क्या आया? फर्स्ट सीड और ट्री। सीड या ट्री, ये एक विषय है। साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। हमेशा ये मन में प्रश्न उठता है कि संसार कैसे बना, क्या उत्पत्ति है। अगर हम वेदों का और ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो ये समझ में आता है कि जो सृष्टि है, सृष्टि का प्रवाह अनादि रूप से चल रहा है। जब हम नहीं थे तब भी ये संसार था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये संसार रहेगा। प्रवाह अनादि है। और जब हम अनादि कहते हैं, अनादि का मतलब होता है कि उसका कोई फर्स्ट डे और कोई लास्ट डे नहीं। तो इसलिए ये कहना कि कौन पहले आया, उसको किसी भी तरह से समझा नहीं जा सकता। लेकिन होता क्या है, उपनिषद में एक वाक्य आता है कि एको अहम बहुश्याम, कि सृष्टि के बनने से पहले जब कुछ भी नहीं था, ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसमें कहा गया न सद आसीत न असत तदानीम न शीत रजो न वयो मा परोयत, कि एक समय ऐसा था जब सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, ये संसार भी नहीं था और इस संसार का सूक्ष्म मंडल भी नहीं था। लेकिन उस समय इस सृष्टि की कामना को लिए ब्रह्म अपने धाम में विराजमान था। और एको अहम बहुश्याम, उसका एक संकल्प होता है, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, और उसके संकल्प से ये जो सृष्टि है ये उत्पन्न हो जाती है। जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं कि परमात्मा की जो सृष्टि इसका सृजन करती है वो ब्रह्मा है, परमात्मा की जो सृष्टि इसका संचालन करती है वो विष्णु है, और परमात्मा की जो शक्ति इसका संहार कर कर वापस अपने भीतर समेट लेती है वो क्या है, वो शिव है। यही परमात्मा की तीन शक्तियां हैं। तो प्रवाह तो अनादि है, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन पहले आया। लेकिन यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें तो जब सृष्टि नहीं भी होती उस समय भी जो परमात्मा है वो रहता है, लेकिन अपनी जब उसके भीतर कामना होती है कि संसार का सृजन हो तो उसकी एक इच्छा मात्र से, एक संकल्प मात्र से ये नाना प्रकार के जो जीव हैं इनका उद्भव होता है, और उसी के एक संकल्प से सब उसी में समा जाते हैं। आपने कहा इस भौतिक तन के लिए धन कमाया, पद कमाया, लेकिन आत्मा के लिए क्या कमाया? हम आत्मा का घर क्या है और कैसे आत्मा के लिए कमाया जाता है, आत्मा के लिए कैसे कमाया जाता है, उस पर थोड़ा प्रकाश दीजिए। आत्मा के लिए कैसे कमाया जाए? इस संसार में हम आते हैं, ये जो संसार है ये हम सबके सामने एक अवसर पैदा करता है। आपने बुद्ध की कहानी सुनी होगी। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने घोषणा की कि इसकी दो नियति है, या तो ये एक महान व्यक्ति बनेगा बुद्ध, या एक ये महान राजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये कथा आपने सुनी होगी। ज्योतिष ने कहा कि इसके इस बालक के दो भविष्य हो सकते हैं, या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा
या ये बुद्ध बनेगा। अगर ये राजा बनेगा तो भी उसके शिखर को छुएगा, और यदि ये सन्यासी बनेगा तो भी बुद्धत्व के शिखर को छुएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके सामने यही दो विकल्प होते हैं, या तो वो संसार को कमाने जाए और उसकी सबसे अंतिम परिणति क्या है कि संसार में ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, और दूसरी नियति क्या है कि वो अपने आत्मिक कल्याण की चाहना के लिए निकले। और आत्मिक कल्याण की चाहना के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसा मैंने कहा कि पुण्य पाथेय क्या है, आपकी आत्मिक संपदा क्या है, उसके लिए मैं कहूंगा कि आप सब लोग मिलकर, आप सब लोग महान पुरुषों की जीवनी को पढ़ें, उनके चरित्र को पढ़ें। आप धर्म ग्रंथों का अवलोकन कीजिए। यदि किसी को वेद समझ नहीं आता, उपनिषद समझ में नहीं आता, गीता की वाणी में योगेश्वर श्री कृष्ण ने जीने के अनमोल सूत्र दिए हैं। किस तरह से सम अवस्था में रहे, किस तरह से हम एक प्रज्ञा की अवस्था को प्राप्त हो, और किस तरह से इस संसार में रहते रहते इस संसार के सुख और दुख के भाव से परे होकर के, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सम दुखा सुखा, कि तो दुख और सुख के अंदर सम की भावना कर, हानि और लाभ के अंदर सम की भावना कर, तो यश और अपयश में सम की भावना कर, तो संसार के सुखों और दुखों में एकस्त होकर के जीना सीख। तो ऐसी अनेक शिक्षाएं हैं। तो इन सब बातों को और इस ज्ञान को जब आप पढ़ेंगे तो आपके भीतर जो चेतन तत्व बैठा है, जैसे मैंने कहा कि वो पूरी तरह से खिलेगा। तो जिन चीजों में, जिन बातों में आज आपको दुख लगता है, जो चीजें आज परेशान करती हैं, जो संसार चारों तरफ खींचता है, संसार की वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब में हम चारों तरफ से बंधे हुए हैं। जैसे जैसे भीतर चेतना का प्रकाश होता है, ये सारे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह से आप देखेंगे कि हूं तो संसार में, लेकिन हृदय के भीतर एक परम शांति है, हृदय के भीतर एक परम आनंद है, और वो जो हृदय का आनंद है, हृदय की शांति है, वो आपकी आत्मा का धन है। आज आपको लगता है कि चारों तरफ अशांति है, जो मार्ग मैं कह रहा हूं उस रास्ते पर चलो। 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर आपको लगे कि अब हृदय में शांति आने लगी है, अब हृदय में संतोष आने लगा है, अब हृदय में आनंद आने लगा है, अब सतोगुण के विचार उठने लगे हैं, तो आप समझिए कि अब आपका आत्मिक धन एकत्रित हो रहा है, और वही वास्तव में आपका पुण्य पाथेय है और वास्तविक संपदा है। नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बचाया जाए? नेक्स्ट जनरेशन, अलग अलग से नाम आजकल तो हम दे रहे हैं, जेनजी कहा जाता है, कि जो अभी छोटे बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, स्कूलों में भी जो है बच्चों को गैजेट्स दिए जाते हैं, एक छोटी आयु से ही जो है उन सबको मल्टीमीडिया का एक्सपोजर है, और इतना सब कुछ उसके ऊपर अवेलेबल है। आप बच्चे के दिमाग में घुस पाए उससे पहले वो सब उसके दिमाग में प्रवेश कर जाता है। और ख़ास तौर पर तो यहाँ की जिस तरह से शिक्षा प्रणाली है, बहुत सी बातें अच्छे भी हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो उनके विकास के लिए बाधा भी बन सकती हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे पढ़ाया जाता है कि जो माता पिता हैं उनको बच्चों का माता पिता नहीं बनना चाहिए, उनका मित्रवत बन करके रहना चाहिए। आप उनके मित्र बन जाओ, आप उनके फ्रेंड्स बन जाओ। लेकिन जो एक प्रणाली है, माता पिता के पास एक अनुभव है। आप बच्चे को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, उसको डांट झपड़ भी करते हैं, तो उसके पीछे एक भावना है कि उसका भविष्य जो है आगे सुधरे। यदि आप पूरी तरह से इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, हमें तो बच्चे का फ्रेंड बन करके ही रहना है, माता पिता का रोल हमें नहीं निभाना, तो उसका कारण क्या होगा कि आप तो फ्रेंड बन जाओगे, लेकिन उसके जो मित्र हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, फिर वो उसके माता पिता बन जाएंगे। फिर वो जैसा उसको समझाएंगे, जैसा सिखाएंगे, वो वैसा चलेगा। तो आप
ये निश्चित कीजिए कि ये जो सोशल मीडिया, ये जितने भी बाहर के सोर्सेज हैं उसके भीतर पहुंच करके, क्योंकि बच्चा तो मिट्टी के लोथ के समान है, जैसा उसको आकार दिया जाएगा वो ऐसा आकार दे देगा। आपको लग रहा है कि अभी तो छोटा है, चलो कोई नहीं, खेलने दें, अभी उसको टीवी देखने दें, अभी उसको मोबाइल दे दिया। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा समय बर्बाद करेगा, उससे अच्छा मोबाइल दे दो, 2 घंटे कम से कम हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन उस 2 घंटे के मोबाइल देखने में जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसके छोटे से कंप्यूटर में चली गई, अब वो प्रोसेसिंग होती रहेगी। और जब तक आपको समझ आएगा कि अब टाइम है कंट्रोल करने का, तब तक वो जो मिट्टी का लोथ है उसको अब एक शेप मिल चुकी है। अब एक बार घड़ा पक जाए तो फिर आप उसको दोबारा उसी मिट्टी से तो नहीं बना सकते, तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो इससे पहले कि ये जो बाहर की दुनिया है वो उसको एक आकार दे, आप उसके भीतर प्रवेश करो और उसको आकार दो। ये सब चीजें सहायक हैं। आप उसको सोशल मीडिया पे दिखाओ तो ऐसी चीजें दिखाओ जिससे उसके भीतर कोई प्रेरणा जागे, जिससे उसके भीतर कोई कला पैदा हो, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी पैदा हो। आप उसको सिखाएं, आप उसको समझाएं, और इस बात को सदैव स्मरण रखें कि आप माता पिता हो और आपको माता पिता ही बनना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम जो है उनको एक बेहतर इंसान भी बना सकते हैं, एक नागरिक भी बना सकते हैं, और उनके भविष्य को भी संवार सकते हैं। मन और अंतर्मन में क्या डिफरेंस है? अंतर्मन नाम का कोई शास्त्रीय शब्द नहीं होता, अंतस्करण होता है। तो अंतस्करण दर्शन की भाषा में, सांख्य दर्शन में अंतस्करण के 4 अंग हैं। अंतस्करण जो है 4 भागों से मिलकर के बना है, जिसे कहा जाता है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये सब बातें शास्त्रीय हैं, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। जैसे आप बैठे हैं, सोच रहे हैं, आपके मन में विचार आया कि मैं मिठाई खाऊं, तो ये विचार कहां से आया? ये मन से आया। तो आपके भीतर चेतना का जो हिस्सा ये कह रहा है कि खाऊं, वो क्या है? वो मन है। अब वो क्यों आया? क्योंकि आपने इससे पहले अनेक बार मिठाई खाई है, आपको पता है कि मिठाई में रस है, इसलिए एक मेमोरी है, एक इंफॉर्मेशन है, एक स्टोरेज है। तो वो क्या है? वो आपका चित्त है। लेकिन आपके मन में विचार उठ रहा है कि मिठाई खाऊं, लेकिन आपको फिर याद आता है कि मुझे तो डायबिटीज है। फिर बुद्धि कहती है कि मिठाई नहीं खानी। तो आपकी चेतना का जो हिस्सा उसको कह रहा है कि नहीं खानी, वो क्या है? वो बुद्धि है। और इस सब में जो मैं हूं कि मैं खाऊं, मैं ना खाऊं, वो जो मैं है वो क्या है? वो अहम है। तो ये मन, चित्त, बुद्धि और अहम, ये चारों मिलकर के दर्शन ने कहा कि ये जो चारों चेतनाएं जो आपके भीतर चल रही हैं, ये क्या है? ये आपका अंतस्करण है। तो अंतस्करण के 4 हिस्से हैं, जिसमें एक मन है। मेरा मन ध्यान में, चितवन में स्थिर नहीं होता है। मन को स्थिर कैसे किया जाए? मन को स्थिर कैसे किया जाए, ध्यान में कैसे बैठा जाए? एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि हम जिस भी चीज का अभ्यास करते हैं, हम उसमें बहुत अच्छे बनते जाते हैं। जैसे महिलाएं बैठी हैं, आपने जब पहली बार रोटी बनाई होगी तो वो कैसी बनी थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो गया तो वो गोल रोटी बनती गई। पुरुष बैठे हैं, आपने जब पहली बार कार चलाना सीखा था, तब क्या होता था कि आप पूरे चौकन्ने होकर के बैठे हैं कि साइड से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके कंधे तने हुए हैं, आपकी आंखें बिल्कुल सामने हैं, कोई साथ में बैठ कर के बोल रहा है तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी बात मत करो मेरे साथ। और आप हमेशा सोच रहे हो कि ABC, एक्सेलरेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, कब कौन सा दबाना है। मन में हमेशा भय बना हुआ है कि जब ब्रेक दबाना है तो वहाँ पर एक्सेलरेटर ना दब जाए। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होता है तो फिर क्या होता है कि अब वो आप सोचते नहीं हो कि अब एक्सेलरेटर यहाँ है, इसको दबाना है, अब इसको ब्रेक को, वो अपने आप दबता है। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब आपके साथ में कोई बैठा है, आप बातें भी कर रहे हैं। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब स्क्रीन पर टीवी चल रहा है तो आप टीवी देखते देखते भी गाड़ी चलाते हैं।
और कई बार तो लोग सो भी जाते हैं तो भी गाड़ी चल रही होती है। तो ये क्या है कि आपने अभ्यास किया, शुरू में कैसी अवस्था थी और बाद में कैसी। तो जिस भी चीज का अभ्यास किया जाता है हम उसमें प्रवीण बनते जाते हैं, क्योंकि हम अभ्यास करते हैं 23 घंटे संसार का और 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं। तो 23 घंटे किसका अभ्यास है? संसार का। और 1 घंटा किसका अभ्यास है? ध्यान का। तो कौन जीतेगा? संसार जो है 23 गुना ज्यादा भारी है आपके मन पर। तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप ध्यान में बैठेंगे और ध्यान लग जाएगा। समय देना पड़ता है, समय दीजिए, धीरे धीरे मन नियंत्रित होता है। आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, अपने आहार को सात्विक बनाइए। आपका आहार सात्विक हो, आपके विचार सात्विक हो, आपका व्यवहार सात्विक हो। एक शांत मन में ही हमेशा चंद्रमा का प्रतिबिंब उतरता है। यदि झील में लहरें हैं तो कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। जिस दिन मन शांत होगा उस दिन वो जो परमात्मा रूपी चंद्र है उसका प्रतिबिंब उसमें झलक जाएगा। माला में मोती 108 ही क्यों होते हैं? माला में मोती 108 क्यों होते हैं? ये अलग अलग तरह से इसकी व्याख्याएं की जाती हैं। तारतम वाणी में भी इसकी एक सुंदर व्याख्या देखने को मिलती है कि 3 तरह से लोग ध्यान करते हैं या बातों को सुनते हैं। 3 तरह से लोग आते हैं और 3 ही तरह के माध्यम से वो जीवन में इन सब बातों को ग्रहण करते हैं। और इसके बाद ये 81, इसको अगर आप गुणा करेंगे तो 81 जो है वो बन जाएंगे। और फिर उसके बाद 82वां पक्ष जो है वल्लभाचार्यों का जो मार्ग होता है उसका होता है। और उसके बाद जो 25 पक्ष जो अनादि परम धाम है, जिसे तारतम वाणी में 25 पक्षों की संज्ञा दी गई है, तो इन सबको जब आप जोड़ते हैं तो 108 बनते हैं। तो उसकी एक गणना है। लेकिन हमें जब भी हम किसी का स्मरण करें या जब भी हम किसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, हमारे मन में भाव यही होना चाहिए कि हम परमात्मा के नाम को, किसी भी पुण्य कर्म को गिनती नहीं दे सकते। वो शब्दों से परे है, वाणी से परे है, संख्या से परे है और हमारा जो भाव है वो प्रधान है। तो मैं यही कहूँगा कि इसकी व्याख्याएं तो हैं, लेकिन परमात्मा को पुकारना, परमात्मा का नाम लेना, उसको किसी भी तरह से नंबर, संख्या की परिधि में नहीं बांधना चाहिए। वो पवित्र हृदय की पुकार है। कोई एक बार पुकारता है तो उसकी पुकार में इतनी सघनता होती है कि परमात्मा द्वार पर पहुंच जाता है। और कोई हजारों पुकार लगाए, लेकिन यदि उसमें पवित्रता नहीं है, यदि उसमें प्रेम नहीं है, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। जीवन में भेदभाव क्यों होते हैं? ईर्ष्या भाव क्यों होते हैं? ईर्ष्या भाव क्यों होता है? जैसे मैंने बताया कि हम सब के भीतर जो आत्मा है वो है उस सप्तक मणि की तरह, लेकिन जीव के संस्कार अलग अलग है। जब हम रजोगुण से थक जाते हैं, जब जीवन में रजोगुण की प्रबलता आती है, तो हम संसार की तरफ भागते हैं। आपने देखा होगा कि जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है और से और धन, और से ज्यादा संचय करूं, एक नई गाड़ी, एक नया है। मन में जो द्वेष है, जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, वो रजोगुण का लक्षण है। तो यदि जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है तो इससे इस प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं। और इसी तरह जब जीवन में तमोगुण प्रधान हो जाता है तो उससे जीवन में आलस्य आता है, निद्रा आती है, जीवन में प्रमाद आता है। और सतोगुण की प्रधानता होती है तो जीवन में सुख, जीवन में आनंद, जीवन में एक समत्व की भावना आती है। और हम सब लोग इन्हीं 3 गुणों में ऊपर नीचे होते रहते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ समय ऐसा होता है जब सतोगुण की प्रधानता होती है, कुछ समय ऐसा होता है जब रजोगुण प्रधान होता है, कभी तमोगुण प्रधान होता है। तो उसी के हिसाब से जीवन में अनेक विचार और व्यवहार हमारे बदलते रहते हैं। तो धर्म ग्रंथों का यही संदेश है कि हमें सत्गुण के अंदर स्थित होना चाहिए। लाइफ में अगर कोई गोल अचीव करना है तो लक फैक्टर होता है या नहीं? अगर है तो वो क्या है?
लक हाँ, लक जैसा कुछ होता है। देखो ऐसा है, जीवन में यदि हमें कुछ भी पाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ सबसे जरूरी है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। जो कठोर परिश्रम है उसका कोई भी विकल्प नहीं है। हो सकता है कि किसी के जीवन में कोई चीज, कोई वस्तु किसी को शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, जैसे वेद में कहा है कि पक्तारम पक्वा पुनः आविशाति नूनम पात्रम निहितम नायतत, कि जो भी हम कर्म करते हैं, ये जो अस्तित्व है ये बहुत समझदार है। ये सब जैसा आप करते हैं वो आपकी झोली में पक करके तुरंत वापस पहुंच जाता है। तो लक का मतलब ये नहीं होता कि पहले से लिखा हुआ है कि यही आपको मिल जाएगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती जाती हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे भविष्य में पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन 1%, 2% ऐसी जो भी बातें होती हैं उसको देख करके हमें अपने पुरुषार्थ को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए अपने पुरुषार्थ पर। एक बात को हम गांठ बांध लें कि जीवन में कुछ भी पाना है तो उसके लिए तप करना पड़ेगा, चाहे आपको संसार में, चाहे आपको अध्यात्म में। कुछ भी पाना है आपको तप करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि योगस्तु कुरु कर्माणि, कि तू योग कर, तू तप कर। अर्जुन के सामने योगेश्वर श्री कृष्ण है, जिसे हमने पूर्णावतार कहा है। योगेश्वर श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र की सभा में जंजीरों में बांधने का प्रयास किया गया, उनके एक संकल्प बल से सारी जंजीरें टूट गई। लेकिन वो अर्जुन को क्या शिक्षा देते हैं कि चमत्कार नहीं, तेरे जीवन का संघर्ष है, तू परिश्रम कर, तू संघर्ष कर। योगेश्वर श्री कृष्ण के पास ऐसी योग विद्या है कि वो चाहें तो युद्ध में सबको सम्मोहित कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा सामर्थ्य है कि वो द्रौपदी की रक्षा करते हैं। पूरी सभा सोचती है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। जो ऐसा चमत्कृत व्यक्ति है, जो ऐसा अनेक प्रकार की माया का स्वामी है, लेकिन उसके सामने उसका परम मित्र है, परम सखा है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि तू कर्म कर, तू पुरुषार्थ कर, तू योग कर, तू तप कर। तो ये सब हमें जीवन में यही संदेश देता है कि निश्चित तौर पर जो भी हमारे संचित कर्म हैं वो हमें फल देते हैं, किसी ना किसी रूप में हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन हमें पूरा परिश्रम के ऊपर अपना पूरा भरोसा करना चाहिए, चाहे संसार हो, चाहे अध्यात्म हो। नीति का एक कथन है कि सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता। शिकार तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। तो हम सब परिश्रम करें, तप करने की आदत डालें। क्या किसी के बुरे कर्म धुल जाते हैं? अगर वो दान करे या फिर गंगा में नहाने जाए तो जो बुरे कर्म जितने किए हैं क्या वो धुल जाते हैं? बुरे कर्म धुल जाते हैं। ये प्लस माइनस नहीं होता है कि जैसे आपने किसी को 5 रुपए दिए, उसने आपको 3 रुपए वापस लौटाए, तो अब 2 रुपया बाकी बैलेंस बच गया। यहाँ पर जो भी आपने किया है, आपके पुण्य एक तरफ है और आपके पाप एक तरफ है। कोई आपको हर किसी का भोग करना है। जो पुण्य कर्म है वो आपके जीवन में स्मृति लेकर के आएंगे, और जो पाप कर्म है वो आपके जीवन में कुछ भी अशंकित लेकर के आएंगे। लेकिन इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि व्यक्ति को हमेशा पुण्य कर्म करने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो आप लोक कल्याण की भावना से कीजिए। जैसे कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। जहां पर भी कामना पैदा होगी, वो जो कामना है, वो जो वासना है, चाहे आप भला कार्य भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मूल में एक नई वासना का जन्म हो जाएगा।
जैसे हम सोचते हैं कि सत्यनारायण की कथा करवा लो, गीता का जाप करवा लो, रामायण के पाठ करा लो, और हमें लगता है कि जो है हमारे जीवन में जो हमने बुरे कर्म किए हैं, हमने कभी चोरी की, हमने कभी किसी का बुरा चाहा, तो जो है इस पाठ के माध्यम से जो है हमारे वो सारे बुरे कर्म कट जाएंगे। मुझे कई बार सोच कर के ये विस्मय भी होता है कि आप भारत में तो आजकल जहाँ जाएंगे आपको राम के नारे मिलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है कि आप सबकी जय जयकार बोलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो किया है उसको जीवन में तो उतारो। दो भाई एक घर में रहना नहीं चाहते, लेकिन दोनों भाइयों के घर में बड़े से बड़ा राम का दरबार सजा है। पुरुष जो है पति पत्नी के बीच में ना संबंध अच्छा है, ना एक दूसरे की बात को समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो घर में बहुत बड़ा राम जी का दरबार लगा है। जीवन में हमारे व्यभिचार है, हम कुमार्ग पर चल रहे हैं, जीवन के अंदर सत्य और असत्य में हमेशा असत्य का चयन करते हैं, लेकिन सबके घरों में आपको किताबों का ढेर मिलेगा, गीता मिलेगी, रामायण मिलेगी। हमें ये विचार करना है कि किताब को पूजने से ज्यादा जरूरी है कि उस किताब में जो चरित्र है उसको जीवन में उतारना। दो चीजें होती हैं, लोग चित्र को घर ले आते हैं और चित्र को पूजने लगते हैं। आप सबके घरों में भी देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी। हमें ये सोचना है कि ये चित्र की तो मैं पूजा करता हूं, लेकिन इस चित्र ने चरित्र को जिया है, उस चरित्र की भी मैं पूजा करूं। और उस चरित्र की पूजा क्या है? उसे अपने जीवन में उतारना। जैसे जो राम का भक्त है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के, वो सीखे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से कि माता के एक कथन पर जो है वो निकल पड़ते हैं 14 वर्ष के वनवास पर। एक दिन पहले श्री राम को कहा जाता है कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं। अगले दिन क्या कहा जाता है? राजा तो नहीं बनाया जाएगा, जंगल में जाना पड़ेगा। कोई उदासी नहीं। 14 साल तक वन में रहे। आप सोचो कि जो वन में रहता है, सीता ने हमेशा फूलों की सैया पर अपने पांव रखे, लेकिन वो अपने पति के साथ नंगे पांव 14 बरस जो है वनवास में जाती है। एक ऐसा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे भारत के समक्ष कि एक आदर्श गृहस्थ कैसा हो, एक परिवार कैसा हो, लेकिन उसको कोई परिवार में नहीं उतारना चाहता। उस चरित्र को हम परिवार में नहीं उतारना चाहते। हमें लगता है कि बड़े से बड़ा मंदिर बना दो, बड़ी से बड़ी मूर्ति बना दो, बड़े से बड़े चित्र सजा दो तो राम जी की जय जयकार हो जाएगी। नहीं, जब तक हम उस चरित्र को जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो हम कोई भी काम करें, हम इस भावना से केवल उसको बाह्य दृष्टिकोण तक सीमित ना रखें, पूजा तक सीमित ना रखें। भावना ये हो कि चरित्र बदले। दान दे रहे हैं तो इस भावना से नहीं कि भैया पुण्य पाप कर्म किए थे, पुण्य कर्म जो दान करने से कुछ कम हो जाएंगे, आप दान दो इस भावना से। उपनिषद का एक मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है जो कहता है तेन तत्तेन भुंजिता, कि त्याग पूर्वक दान करो। आप जब किसी को दान दो, आपके मन में यह भावना हो कि हे परमात्मा, तुमने मुझे दिया, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। अपने सामर्थ्य के अनुसार अब मैं किसी दूसरे को देता हूँ। जैसे तुमने मुझे दिया, मैंने किसी दूसरे को दिया। जब परमात्मा हमें देता है तो हमसे कुछ मांगता नहीं है, तो उसी भावना से हम भी दें। अपने मन में कोई कामना ना रखें। आप विचार करें, जिस दिन हम निष्काम होकर के इस प्रकार के कर्म करेंगे, चारों तरफ से परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर अपने आप बरसेगा। आप सोचते हैं कि कुछ पुण्य कर्म मिल जाएंगे, परमात्मा की कृपा बरसेगी तो पूरा जीवन बदल जाएगा। अभी 4 क्वेश्चन है और टाइम 6:10 हुआ है। करने हैं या फिर देख लीजिए, क्विकली कर ले। ओके, व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? जीवन क्या है? जैसे मैंने कहा कि गंगा निकलती है गंगोत्री से और उसे पहुंचना है गंगा सागर। तो गंगोत्री और गंगा सागर के बीच की यात्रा है जीवन। अनेक पड़ाव आएंगे, अनेक घाट आएंगे। नियति तो है गंगा सागर में पहुंचना,
आप घाट पर रुकेंगे, घाट पर प्रतीक्षा करेंगे, अनेक पत्थर आएंगे, अनेक मार्ग आएंगे, लेकिन जीवन की सरिता रुक नहीं सकती। जीवन का जो संताप है वो मिट नहीं सकता। जीवन के अंदर जो अपूर्णता है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। जीवन की अपूर्णता, जीवन का संताप तभी मिटेगा जब गंगा गंगा सागर में मिलेगी। तो ये जीवन की यात्रा है, हम सब के ऊपर निर्भर करता है कि घाट बहुत आएंगे, लेकिन किसी घाट पर ठहरना नहीं है। आप हमेशा जीवन में लक्ष्य बनाइए उस गंगा सागर को, उस परमात्मा को। जीवन की ये जो धारा है, ये जो सफर है गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर का, आप लक्ष्य बनाइए गंगा सागर को। जिस दिन वो गंगा सागर में समा मिलेगी तो उसी दिन जीवन में पूर्णता आएगी। आत्मा की मुक्ति मृत्यु के बाद होती है या फिर जीते जी होती है? आत्मा सदैव मुक्त है, आत्मा कभी बंधन में नहीं पड़ती। जैसे मैंने कहा कि सप्तक मणि है, मणि के ऊपर अगर लाल रंग का फूल रखेंगे तो मणि लाल आपको दिखाई देगी, लेकिन मणि का रंग लाल नहीं है। आप फूल हटाइए, मणि तो निर्विकार है। उसी तरह से जो चेतन मेरे भीतर है, जो चेतन आपके भीतर है, जो चेतन बुद्ध के भीतर था, जो चेतन महावीर के भीतर था, वो सारी चेतनाएं एक जैसी हैं। उनमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल हमारे मन और अंतस्करण में। हम सबके भीतर जो चेतना है वो निर्विकार है, वो सदैव मुक्त है। वो मुक्त थी, मुक्त है और हमेशा मुक्त रहेगी। ये बंधन केवल जीव का है। दर्शन कहता है कि जैसे एक पक्षी है, वो एक अंडे के खोल में है, वो कोशिश करता है बाहर निकलने की। जिस दिन वो अंडा टूट जाता है, वो पक्षी फिर गगन में जो है ऊंची उड़ान भरता है। उसी प्रकार वो आत्मा है, वो केवल जीव और अंतस्करण के उस अंडे के खोल में है। जिस दिन वो मन के सारे संस्कार धुल गए, जिस दिन वो सारी चाहनाएं समाप्त हो गई, तो वो जो आत्मा रूपी पक्षी है वो उस खोल को तोड़ करके अनंत के आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। क्या संसार में रहकर परमात्मा को पाया जा सकता है? संसार में रहकर के परमात्मा को पाया जा सकता है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि किस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है। तारतम वाणी कहती है कि घर में रहिए, न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में वास। घर में ही रहिए, आप अपने घर में रहो। दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है कि शांति के लिए हिमालय के पहाड़ पर चले जाएं, और दूसरा रास्ता है कि हिमालय की शांति को अपने भीतर ले आओ। दूसरा रास्ता सरल है। क्यों? क्योंकि यदि आप हिमालय पर पहुंच भी गए, आप संसार को तो छोड़ जाओगे, लेकिन मन का क्या? वो जो मन के हजारों विचार हैं, जो मन के प्रयोजन है, मन के संस्कार हैं, वो आपके साथ जाएंगे। आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। लोगों की भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन आप अपने अंदर अपने ही विचारों की भीड़ में होगे। सरलतम मार्ग क्या है? जहां आप हैं, जिस अवस्था में हैं, आप उसी अवस्था के अंदर समत्व की भावना को जीना सीखिए। जीवन में सुख आए, जीवन में दुख आए, हानि हो, लाभ हो, यश हो, अपयश हो, एक समत्व की भावना में जीने का हम प्रयास करें। और आप ध्यान कीजिए, धीरे धीरे जीवन में अपने आप शांति आने लगेगी। गृहस्थ में रहकर भी जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में दुर्गंध है लेकिन कमल में सुगंधी है। कीचड़ में कुरूपता है लेकिन कमल में कोमलता है। कीचड़ में कुरूपता है लेकिन कमल में परम सौंदर्य है। तो ये उदाहरण है कि गृहस्थी के संसार के कीचड़ में भी हम कमल की तरह खिल सकते हैं। पूरा दिन हमारे मन में श्री राज्य का, परमात्मा का चिंतन रहे, इसलिए हमारे मन में पूरे दिन परमात्मा का चिंतन रहता नहीं, तो वो कैसे रहे? ऐसा क्या किया जाए जो पूरे दिन में हमारे मन में एक श्री राज्य का, परमात्मा का चिंतन रहे? पूरे दिन परमात्मा का चिंतन कैसे रहे? गृहस्थ के अनेक काम हैं। जिस भी काम को करेंगे आपको अपनी चेतना को वहां पर देना पड़ेगा। आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आप ध्यान कर रहे हैं मूल मिलावे का, तो आपको सामने से आती हुई गाड़ी भी नहीं दिखेगी, हो सकता है आपकी टक्कर भी हो जाए। तो पूरे दिन चिंतन का मतलब ये नहीं है कि आप बस पूरा दिन सुबह से लेकर के राजी 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 या परमात्मा राम 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 कर रहे हैं।
पूरे दिन चिंतन का मतलब है कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई यहाँ का व्यक्ति है, उसने आपको कोई बात कह दी, आपको बहुत बुरी लगी, आपके मन में भी विचार आया, उसने एक गाली दी, हमने 2 गाली दे दी। लेकिन एक समय आता है जब मैच्योरिटी आती है, तो आपको लगता है कि चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ो। तो अब क्या है कि अब एक परिपक्वता आ गई। इसी का मतलब है कि जीवन में अब अध्यात्म आ गया। आपको बिजनेस में कोई लॉस हुआ, आप बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए, शराब पीने लग गए, सबसे नाता तोड़ लिया, कोई डिप्रेस हो गया, किसी ने सुसाइड कर ली। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि कोई नुकसान हुआ तो अब लगता है कि कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करेंगे। तो जीवन के हर सुख और दुख के अंदर समत्व की भावना, जीवन की हानि और लाभ के अंदर एक सम की भावना में आप जीने का जब तरीका सीख जाते हैं, तो उसे कहा जाता है कि अब आपके जीवन में 24 घंटे अध्यात्म जो है वो प्रकट हो रहा है। हर समय हमें चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन आप विषमताओं में भी सम रहना सीख गए। आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके वचनों से, आपके कर्तव्य से एक वो दिव्यता झलकने लगे। तो ये है कि आपके 24 घंटे में परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो रहा है। तो हम ये प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे जपते रहे। प्रयास ये हो कि मेरे 24 घंटे का जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाए। तो इसको साधें, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, तारतम्य वाणी को पढ़िए, चर्चा को सुनिए, विश्लेषण जो होते हैं आपको समझ देंगे। इस तरह के जैसे भी कार्यक्रम होते हैं आप समय से पहुंचिए और जिज्ञासाओं से धीरे धीरे समाधान बनते हैं तो जीवन में परिवर्तन आता है। यही मूल मंत्र है। अब हम डॉक्टर प्रवीण जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे बीच ब्रह्मवाणी का संदेश दिया और हमारे प्रश्नों का निवारण किया। लेकिन अब इसके बाद भोजन का आरंभ होगा। लेकिन डॉक्टर प्रवीण जी यहाँ पर है, तो अगर किसी को और भी शंका है तो आप बिंदास यहाँ आ सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं। और आप सबका भी धन्यवाद जो आप सबने उनको शांति से सुना। सभी प्रश्नकर्ताओं को मेरा जीवन जीव को माता का गर्भ में आता मेरा माता का गर्भ में आना नहीं है हर जीवन को। तो ये माता का गर्भ में आना नहीं है, तो इतनी परम शक्ति कौन है जो दिखलाओ तो इसका श्रवण करूं और ये हमारा जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा दिखाओ। ये सब मैं इसका प्रश्न कर। माता के गर्भ में आना, शंकराचार्य अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का ग्रास करना, बार बार जननी के जठर में, गर्भ में आना, ये संसार के प्राणियों की नियति है। तो इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता शंकराचार्य ने जो सुझाया है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि जो आत्मा है, जैसे एक पक्षी जो है वो अंडे के खोल में बंद है, और वो खोल क्या है? वो है हमारे विचार, वो है हमारे संस्कार और वो है हमारे अंतस्करण। जिस दिन विचारों का, संस्कारों का और उस अंतस्करण की खोल टूटती है तो वो जो कैद है, जो पक्षी है भीतर, वो गगन में ऊंची उड़ान भरता है। तो जिस दिन अध्यात्म के मार्ग पर ज्ञान को अर्जित करते हुए परमात्मा के कहे अनुसार दिव्य कर्म को अपना करके और हृदय में भक्ति लेकर के उस अनन्य अक्षरातीत पर प्रेम लक्षणा भक्ति से समर्पण किया जाता है, तो जीवन में वो समय आता है, वो क्षण आता है जब जो संसार के संस्कार हैं वो धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और सत्य जो है वो प्रबल होने लगता है। और उसकी परम अवस्था ऐसी होती है जिस दिन सारे संस्कार जो है शून्य हो जाते हैं, और वही उसे मुक्ति कहा जा सकता है, उसे मोक्ष कहा जा सकता है, उसे आत्मा की जागृति कहा जा सकता है, उसे निर्वाण कहा जा सकता है।
और उसे जो है परम मोक्ष कहा जा सकता है। तो अब हम भोजन का आरंभ करेंगे, लेकिन वो पुस्तक जो बुक्स हम आपको देना चाहते हैं तो आप बिना भूले वो बुक्स, पीछे बुक्स का काउंटर है, पर फैमिली दी 3 बुक्स दी जाएगी, तो आप उसको लेना ना भूलें। और डॉक्टर प्रवीण जी यहाँ पर बैठे हैं, अगर किसी को पर्सनली मिलना है तो हमें यहाँ आकर मिले। જમણવાર માટે પાછળ જે ઓર્ગેનાઇઝર છે કોઈ સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટ ખરી? ઓકે, એટલે 15 મિનિટ પછી, પણ પછી બહેનોને પહેલા આવવાનું, ભાઈઓને પહેલા આવવાનું, એવી રીતની કોઈ વ્યવસ્થા? કારણ કે ખાતે આપણને ખબર છે ને જેવું થાય છે, એટલે જો તમારી સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટ હોય તો આપણે અહીંયાથી એ પ્રમાણે જવા દઈએ. હા, તો પછી પહેલા બહેનો જાય, બરાબર ને? ભાઈઓ અહીંયા બેસી અને 15 મિનિટ પછી, અને પાણીની બોટલીનું યાદ રહ્યું તમને? થોડી અડધી ના મેલતા ધ્યાન રાખજો, કોઈ અડધી મેલે તો બધા વાતો કરજો આપણે એની, એટલે એવું થાય ના.